गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले पीरियड में हमने सॉलिड स्टेट फिनिश किया था। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वही सेक्शन 1 का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के 2-4 टॉपिक फिनिश कर लेंगे, बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्टिंग विद सम डेफिनेशन, इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन, सॉल्यूशन इटसेल्फ। Solution. What is solution? It is a mixture of two or more substance. When two or more substance they mix each other, then they form a solution. For example, suppose you have this is a water. In this water you added salt. Also you added sugar. So when sugar or salt, when they are both are added in water, they gets mixed with water and they form a solution. And how they mix? ये कैसे मिक्स होते हैं? ये शुगर और सॉल्ट वाटर में कहाँ गया? ये हमें दिखता ही नहीं है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम होमोजीनियस सॉल्यूशन। सो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। सो वर्ड होमोजीनियस इंपॉर्टेंट है। सो होमोजीनियस mixture of two or more substance, it is called as solution. For example, when sugar and salt added in water, they form a homogeneous mixture and it is called as solution. Next definition, definition number 2, it is a binary solution. Binary solution, names indicate binary means two, so it is a homogeneous mixture of only two substance, only two substance. That homogeneous mixture of only two substance, it is called as binary solution. For example, salt and water, sugar and water, alcohol and water, they are binary solution. And out of that two substance, one substance is called as solute and another substance is called as solvent. So first substance, it is called as solute. What is solute? The substance which is present in small amount, it is called as solute. And second substance, it is called as solvent. What is solvent? The substance which is present in large amount in a solution, it is called as solvent. So depending on the quantity, substances are classified into two types. Some are solute and some are solvent. For example, binary solution का आप example लेंगे, that is a salt solution. So in salt solution, salt is an example of solute because it is taken in small amount. And solution उसमें जो solvent रहेगा, it is water. बेसिकली हम वाटर जनरली ज्यादा सॉल्वेंट लेंगे हम। सो एग्जांपल ऑफ सोल्यूट इज सॉल्ट, एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस क्वांटिटी, ऑन द क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन, solution are classified into two types, dilute solution and number 6, it is a concentrated solution. What is dilute solution? The solution in which amount of solute is less as compared to amount of solvent. जिसमें सोल्यूट बहुत कम रहेगा और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा रहेगा, उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम डाइल्यूट HCl, मेनी टाइम्स यूज करते हैं हम हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट HCl इन दिस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस। इसमें HCl कम होता है और वाटर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl, इसमें वाटर कम रहेगा और सोल्यूट ज्यादा रहेगा। So depending on the amount of solute and solvent, solution are up to type dilute solution and concentrated solution. One more important term and it is number 7, that is a volatile solute. Volatile solvent, volatile solution. The word is volatile substance. Which substance are volatile? Volatile किसे कहते हैं? The substance which evaporate easily. वो substance जो वेपोराइज बहुत जल्दी हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस व्हिच इवापोरेट इजीली। जो बहुत जल्दी वेपर बनके भाप बनके उड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल आप सबको मालूम है, पेट्रोल। पेट्रोल आप देखते हैं बहुत जल्दी वो इवापोरेट हो जाता है। सो पेट्रोल इज एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। सेकंड एग्जांपल, इट इज ईथर। ईथर वोलेटाइल होता है। कैम्फर, it is volatile. So ether, camphor, naphthalene ball, petrol, then kerosene, all these they are volatile because they evaporate easily. So these are the simple terms that we will use time to time. इसमें दो टर्म हम देखते हैं, solute and solvent. Now depending on this nature of solute and solvent,
ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? डिपेंडिंग ऑन दिस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो डिटेल में हम 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। So next is types of solution depending on nature of solute and nature of solvent. This is solute and here it is solvent. And the examples. Types of solution. So first, suppose all solutes are solid. फर्स्ट टाइप लेंगे जिसमें सोल्यूट जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा एंड सॉल्वेंट इट चेंजेस। सॉल्वेंट सपोज फर्स्ट इज लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, इसको आप पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। एग्जांपल अभी देखा था हमने सॉल्ट सॉल्यूशन। इन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट इज सॉलिड एंड water is liquid, so it is salt solution. Sugar solution, sea water, all these they are solid in liquid. Second, solid in solid, mixture of two solid, दो solid को mix करते हैं। Example that is alloy. Alloys जो होते हैं, two alloy बहुत common alloy, one is brass and second one is bronze. Brass and bronze they are the combination of two solids. Solid in solid. Alloy are the example of solid in solid. Next one is solid in gas. Solid के पार्टिकल गैस में डिस्पर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड होता है आयोडीन, इसके क्रिस्टल्स होते हैं और ये वोलेटाइल होता है, इवापोरेट हो जाता है। सो इवापोरेट होके वो एयर में डिस्पर्स हो जाता है। सो आयोडीन इन एयर इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। These are the first 3 types of solution. Next one, solute is liquid. All solute are liquid. And solvent changes. First, liquid in liquid. Mixture of two liquid. दो liquid को हम mix करेंगे. For example, it is ethanol. Ethanol means alcohol in water. अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते, दे मिक्स इजीली, बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं, दे फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे। ऊपर था सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज और सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। हियर लिक्विड इन सॉलिड, इट इज एग्जांपल इज एमलगम। अमलगम्स इसको आपने यूज किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मर्क्यूरी जो होता है, मेटल जो होता है, मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसको कहते हैं हम एमलगम कहते हैं। जैसे एग्जांपल मर्क्यूरी Hg इन सिल्वर, मर्क्यूरी इन सिल्वर, जैसे एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है और सिल्वर जो है वो सॉलिड होता है। सो लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल एमलगम्स। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो गैस के अंदर डिस्पर्स होते हैं, गैस और उसमें लिक्विड रहेगा डिस्पर्स। जैसे एग्जांपल लिक्विड का लेंगे आप क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, फिर से ये वोलेटाइल होता है, ये इवापोरेट हो जाता है। दैट क्लोरोफॉर्म इन एयर, एयर में यहां पे बताएंगे हम नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड व्हिच इज वोलेटाइल and it evaporate in air nitrogen. Chloroform in nitrogen is example of liquid in gas. These are the 3 types of liquid solution. First solid solution, second liquid solution, and third one is gas, gaseous solution. So all solutes they are gas. So first gas dissolving liquid. Gas dissolving liquid, ये liquid in gas था। इसके ऑपोजिट आ रहा है गैस डिसॉल्विंग लिक्विड। गैस बबल्स होते हैं जो लिक्विड के अंदर होते हैं। तो बस कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए आप जिसमें बबल्स लिक्विड में होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर। Oxygen, this is gas, it is dissolved in water. So oxygen dissolved in water, gas in liquid. All types of cold drinks, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड उस ड्रिंक्स में डिसॉल्व होता है। सो कोल्ड ड्रिंक्स आर एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट वन इज गैस इन सॉलिड।
गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड के अंदर डिस्पर्स होते हैं, गैस इन सॉलिड। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस विच इज डिसॉल्व्ड इन पैलाडियम। पैलाडियम आपने यही एग्जांपल देखा था, हाइड्रोजन इन निकेल, प्लैटिनम और पैलाडियम, दे आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रेने निकेल यूज किया था आपने, सो हाइड्रोजन गैस इन रेने निकेल अगेन सेम है वो हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम। पैलाडियम इज ए मेटल, सो ये होता है गैस इन सॉलिड। एंड लास्ट वन गैस इन गैस, सिंपल एग्जांपल air. Air is a mixture of oxygen gas, nitrogen gas, airborne gas, etc. So mixture of gases, there is air, there is an example of gas in gas. These are gas ratios. So these are the 9 types of solution depending on nature of solute and nature of solvent. इस पे आपको सिंपल एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से आप इसको स्टडी करेंगे। Next, after types of solution, we have to see some simple definitions. Again some definition. But the first term is, अब जो पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है इट इज सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी, और इसकी डेफिनेशन देखना है। व्हाट इज सोलुबिलिटी? सपोज एक सॉल्यूशन है आपके पास, वी हैव वन सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट ऐड किया है, दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, व्हाटएवर सोल्यूट, कितना भी सोल्यूट हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन रहेगा इसका वॉल्यूम यूनिट रहेगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं आप और उसमें जितना भी सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। व्हाट इज सोल्युबिलिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। Now depending on this solubility, solution are classified into 3 types. सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी कितनी होती है, सोल्यूट कितना डिसॉल्व होता है, लेस होता है, मोर होता है कि मोर देन होता है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सपोज करो कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, नॉट सॉल्यूशन, यू विल टेक सम सॉल्वेंट, एक आपने सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, वाटर, और इसमें आप ऐड कर रहे हैं सोल्यूट। So when solute is added in solvent, that solute dissolved in solvent. It has some capacity of dissolving. ये solute या solvent में dissolve होगा, इसकी कुछ capacity होगी, इसका मतलब हाईएस्ट अमाउंट में dissolve हो जाएगा 50 ग्राम। अब इससे ज्यादा ये solute solvent में dissolve नहीं होगा, इसके बाद अब जो भी solute आप डालेंगे वो undissolved रहेगा। So अब after that 50 ग्राम, that solute is undissolved. So when an equilibrium is established between undissolved solute and dissolved solute, जब undissolved solute और dissolved solute के बीच में equilibrium आ जाएगा, that type of solution is called as saturated solution. The solution in which amount of dissolved solute and amount of undissolved solute are equal, equilibrium, that is called as saturated solution. Next one, number B, it is unsaturated solution. नाम बता रहा है unsaturated, in which amount of undissolved solute is less than the amount of dissolved solute. आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला, जितना भी डाला 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम पूरा डिसॉल्व हो गया। अब आप जितना भी डालेंगे उसके बाद वो रहेगा अनडिसॉल्व, एंड इफ अनडिसॉल्व इज लेस देन डिसॉल्व सोल्यूट, इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, नंबर सी, इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेम इंडिकेट और नॉट सैचुरेटेड। नंबर सी, इट इज सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऑलरेडी वी हैव सीन, सुपर सैचुरेटेड नाम बता रहा है इन विच अमाउंट ऑफ undissolved solute is more than the amount of dissolved solute. अब जितना भी डिसॉल्व होना था वो हो गया 50 ग्राम, आप अनडिसॉल्व डाल रहे हैं वो भी 50 ग्राम, लेकिन अब 50 ग्राम से ज्यादा डालेंगे आप, then the amount of undissolved solute is more than the amount of dissolved solute, is called super saturated solution. So depending on the solubility of solute in solvent, solution are of 3 types: saturated, unsaturated and super saturated. इसमें हमको सिर्फ saturated solution ही स्टडी करना है, unsaturated और super saturated का इंपॉर्टेंस नहीं। नेक्स्ट फैक्टर, यही सोल्युबिलिटी इंडिकेट कर स्टडी करते हो, इस सोल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इन पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। जनरली हम सोल्युबिलिटी देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड,
Factors affecting solubility of solid in liquid. There are three factors which affect the solubility. First factor, it is the nature of solute and nature of solvent. जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं, इस सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, नमक को पानी में डाल रहे हैं, आप अल्कोहल को पानी में डाल रहे हैं, तो कौन कितना सोल्यूबल होगा वो डिसाइड करेगा उनका नेचर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और नेचर डिपेंड होता है, दो टाइप के सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर सोल्यूट एंड नॉन पोलर सोल्यूट, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो कंडीशन दो होती है. नंबर ए, पोलर सोल्यूट they dissolved in polar solvent. ये एक रूल होता है कि पोलर सोल्यूट जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. पोलर का मतलब which have pole, which have charges, which have ions, positive and negative ions. For example, NaCl. अब NaCl इसमें डिसॉल्व होगा. आपको मालूम है NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है क्योंकि वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट. So NaCl in water, it is an example of polar solute dissolved in polar solvent. Next is number B, non-polar. Non-polar solute is dissolved in non-polar solvent. अब non-polar solute क्या होते हैं? जो organic solute होते हैं, और non-polar solvent भी organic solvent. जैसे organic ले लीजिए आप कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये डिसॉल्व होता है बेंजीन में. बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. इससे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे ईथर. ईथर जो होता है बेंजीन में, ईथर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ईथर बेंजीन में डिसॉल्व होता है, अल्कोहल में डिसॉल्व होता है ईथर. सो ईथर इन अल्कोहल because it is a non polar solvent. So non polar में डिसॉल्व होते हैं और पोलर में डिसॉल्व होते हैं. First factor which affect the solubility, it is the nature of solute and nature of solvent. Now second factor, number second, it is the temperature. Temperature of solution. अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कौन सा सोल्यूट डिसॉल्व होगा, कौन सा कम होगा, कौन सा ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व होगा. सो दिस टेम्परेचर ये इफेक्ट करेगा, एक और फैक्टर पे डिपेंड रहेगा, एंड दैट फैक्टर इज एंथैल्पी. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये टर्म आपके लिए न्यू है. एंथैल्पी का सेकंड नेम होता है हीट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज एनर्जी. एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ solution. There are two types of reactions, one exothermic and second endothermic. दो टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक. जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड सेकंड वन नंबर बी, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा. Now what is endothermic reaction? The reaction in which heat is absorbed, जिसमें heat absorb होती है. जैसे example, when NaCl dissolved in water, जब आप नमक को पानी में डालते हैं, NaCl को वाटर में डालते हैं तो उसमें heat absorb होती है, वो endothermic reaction होता है. और endothermic reaction के रूल है कि temperature of that solution is directly proportional to its solubility. मींस उस टाइम पे जितना भी ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी सोलुबिलिटी बढ़ते जाएंगे. तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी. मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility also increases. So when NaCl, when KCl, when they dissolve in water, then there are endothermic reaction and that solubility increases. Exothermic reaction, the reaction in which heat is absorbed, जिसपे heat absorb होती है. जैसे example, CaCl2 dissolved in water, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आप लाइमस्टोन लीजिए, चूना लीजिए, उसको पानी में डालिए तो हीट इवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड फॉर दैट द रूल इज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी. मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility of such a solution decreases. So this is for exothermic reaction. So second factor which affect the solubility, it is the temperature of solution.
and temperature of solution depends on the enthalpy of the solute, enthalpy of the solution. Endothermic reaction and exothermic reaction. So the last factor which affects solubility, that factor is most important. The last factor सबसे ज्यादा important है. Number third, it is pressure. Pressure of gas. Now ये जो भी हम फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, ये सोल्युबिलिटी हम स्टडी करते हैं सॉलिड इन लिक्विड. ये सॉलिड इन लिक्विड के लिए. और ये फैक्टर जो है प्रेशर ऑफ गैस, इट इज गैस इन लिक्विड. ये स्पेशल टाइप की सोल्युबिलिटी है, देखते हैं हम सिर्फ गैस इन लिक्विड के लिए. और इसके लिए हमको प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, इसके लिए हमको एक लॉ स्टडी करना है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेनरी. सो द लॉ इज हेनरीज लॉ. ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है. हेनरीज लॉ एंड सिंपल लॉ. व्हाट इज दिस लॉ? कि solubility of gas in liquid, it is directly proportional to pressure of the gas above the liquid. Solubility is directly proportional to pressure of the gas. It is called as Henry's law. Simple law. S is directly proportional to P. ये proportionality के साइन हटाएंगे. S is equal to K into P, where K is constant and it is called as Henry's law constant. K कांस्टेंट होता है जिसे कहते हैं हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और इसका यूनिट होता है K. इसका यूनिट रहेगा जिसे यहां से हम देखेंगे S is equal to K multiplied by P. Therefore K is equal to S upon P. S is solubility. Solubility का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर. और प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर ऑफ Hg. यहां हम प्रेशर का यूनिट लेंगे बार. सो प्रेशर का यूनिट रहेगा बार, नीचे है वो, इसलिए हो जाएगा बार इनवर्स. और मोल पर लीटर ये यूनिट रहेगा सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर. सो K is equal to मोल लीटर इनवर्स एंड बार इनवर्स. दिस यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको स्टडी किया जाता है हेनरीज लॉ से. एंड व्हाट इज हेनरी लॉ? इट इज द सोल्युबिलिटी of gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas above the liquid. That is called as Henry's law. And this is all about factor affecting solubility of solid in liquid. So this small part आज हमने finish किया. कल हम new part study करें. Okay, thank you.